नया दौर है, नया ट्रेंड है, नया एरा है और नए नए टेस्ट हैं। अब चाहे वो एक्सेसरीज में हो, क्लोथ्स में हो, फुटवेयर्स में हो या फिर खाने में। अब खाने की बात की है तो बाकी सारी चीजें तो अपने आप ही अपार्ट हो ही जाती हैं। तो बस इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैं भावना पहुंच चुकी हूँ महानगर के एक ऐसे रेस्टोरेंट में जो अपनी न्यू वैरायटीज ऑफ डिशेस के लिए बहुत फेमस है। तो आइए चलिए मिलते हैं उनके ओनर से और पूछते हैं कि क्यों आखिर सेलर अपने में एक ब्रांड बन गया है। अब मैं पहुंच चुकी हूँ यहाँ की ओनर के पास। मेरे साथ वो बैठी हैं मिस कनिका। आइए पूछते हैं कि आखिरकार क्या खास है सेलर में। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम मैम। Thank you. मैम कैन यू प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट सेलर। Seller is it's almost we've been here for now 8 years now, and initially we started as an total Italian restaurant, but gradually we've changed, keeping in mind the market trends and all. So we've made it into a multi-cuisine, exotic cuisine, but you will not get anything Indian and all. It will be mostly exotic cuisine from all over the world. So it's a mixture of all cuisines that what we are serving here, and we keep on trying new stuff. What is in, what would suit the palate of the people. So we keep trying and giving in new things to the customers. What are the strategies which you adopt to entertain your guests? See, not on a regular basis, but yes, once in a while we do have festivals. We organize festivals wherein we change the entire interiors of the restaurant. We get in my waiters, my staff, everybody is dressed with that kind of whatever we are doing. They according to that they are dressed up. Plus we have new special menus. That's what we serve, some music and all. So it blends with that festival. And can you please tell us some of the specialities of Cellar? Specialities are our sizzlers. Let's see. The thing is, we don't have any specialities as such, but the most hot selling is our sizzlers. We do have continental, we have Lebanese, we have Mexican, we have a mix of everything. But whatever sells most is sizzlers. Our risottos, that's an Italian dish which sells the most. And now pastas are coming up in a way. People are too appreciating pastas and all. And one thing which you would like to tell your guests? And yes, my chocolates also. We've started with this new Belgian chocolates. These are the only, I mean, like, those chocolates are the only ones which are available here, like in Lucknow. The flavors and all that we give, those are only available with us. Ma'am, can we please see some of your dishes? My dishes, yeah, you can have a look at them. Ma'am, before that, I would just like one more question. Something you would like to tell your viewers? I would like to thank them for giving us an opportunity to keep trying new things, and I would always love them to keep coming back to us again. Thank you so much, ma'am. मैं कुछ टेस्ट करने वाली हूँ क्योंकि यहाँ पे बैठ चुके हैं हमारे साथ यहाँ के मैनेजर। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम सर। नागेंद्र जी। नागेंद्र जी, आप हमें क्या क्या स्पेशलिटीज दिखाने वाले हैं? पहले तो मैं आपको दिखाऊंगा रोस्ती। ओके। जो कि स्पेशल है ऑस्ट्रेलिया का। ओके, तो इसमें क्या क्या चीजें होती हैं एक्चुअली? रोस्ती एक्चुअली होता है मिक्स पोटैटो पैनकेक होता है। बॉइल्ड पोटैटो होगा, उसको मैश किया जाएगा। देन उसका पिज्जा बेस की तरह एक सेल बनाया जाएगा। उसके ऊपर जो भी आप टॉपिंग लें, वेज या नॉन वेज, उस हिसाब से। तो मैं क्या इसे टेस्ट करूं? बिल्कुल कर सकते हैं आप। मैं जरूर करना चाहूंगी इसे टेस्ट और बताना चाहूंगी अपने व्यूअर्स को कि आखिरकार कैसा टेस्ट करता है ये। आई मस्ट से, मतलब आपको वेज और नॉन वेज दोनों का टेस्ट इसमें एक साथ मिल पाएगा, क्योंकि आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे चिकन के पीसेस हैं, चिकन के पीसेस भी हैं, और यहाँ पे नीचे आई थिंक मैश पोटैटो होगा, ये वेज होगा, ये नॉन वेज होगा। ओके, तो इसे रोस्ती कहते हैं, राइट? यस। ओके, तो रोस्ती तो मुझे टेस्ट करने में बहुत टेस्टी लगा और बहुत मजा आया इसे खाने में। तो रोस्ती के बाद और क्या क्या चीजें हैं जो आप हमें दिखाना चाहते हैं? रोस्ती के बाद मैं आपको दिखाऊंगा पास्ता। यस। ओके, जो कि फेमस है इटली में। ओके, तो पास्ता भी यहाँ पे बहुत पसंद किया जाता है। पास्ता बहुत पसंद किया जाता है, रोस्ती भी काफी लोग पसंद करते हैं। तो पास्ता में जैसे कि मैं ये देख रही हूँ कि ये ब्लैक चीजें क्या हैं? ये ऑलिव होता है। ऑलिव्स होते हैं। और इसमें क्या रेसिपी किस टाइप से आप बनाते हैं? कौन से? एक्चुअली बोलिए। जो पास्ता होता है वो मैदे का बना हुआ होता है। इसको बॉईल
बॉईल करने पे ये पूरी तरह से पक जाएगा। ये जो देख रहे हैं रेड रेड, ये टोमेटो कनकेसी होती है। बॉइल्ड पोटैटो किया जाएगा, उसको फिर पीसा जाता है, हल्का सा मसाले वगैरह मिलाए जाते हैं फिर, ठीक है। और फिर इसको बनाने के लिए जो है टोमेटो कनकेसी, टोमेटो पेस्ट एक तरह से होता है वो, तो उसको लिया जाता है पैन में। दैन थोड़ा सा मसाला, इटालियन मसाले, हर्ब्स वगैरह होते हैं। उसके बाद ये पास्ता डाला जाता है। और ये आप गार्लिक ब्रेड के साथ ये सर्व होता है, सर्व किया जाता है। ठीक। और गार्लिक ब्रेड में की क्या स्पेशलिटी है? हाउ यू कॉल इट गार्लिक? गार्लिक एक्चुअली इसके अंदर गार्लिक पीसेस होते हैं। ओके। तो गार्लिक का टेस्ट इसमें आता है। मतलब ये भी मैदा ही होता है उसमें? हाँ, आप गार्लिक तो मैदे का ही बनता है, तो उसमें थोड़ा सा। तो मैं जरूर टेस्ट करना चाहूंगी और अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगी कि आखिरकार मैं आपको बता रही हूँ इसमें भी जो ज्यादा चीज का कंटेंट भी नहीं है कि आपको जो जनरली गर्ल्स हैं उन्हें लगता है कि बहुत फैटनिंग होगा, तो बिल्कुल फैटनिंग भी नहीं लग रहा है मुझे। और साथ ही साथ आपको हेल्दी भी लग रहा है। व्हाइट सॉस में ज्यादा पड़ता है, ये रेड सॉस पास्ता है। ये रेड सॉस पास्ता। तो व्हाइट सॉस और रेड सॉस में डिफरेंस क्या होता है? उसमें थोड़ा चीज का मात्रा ज्यादा होता है, फैट थोड़ा ज्यादा होता है। आप उसमें कलर कैसे लाते हैं? कलर व्हाइट सॉस से आता है। व्हाइट सॉस हमारा होता है मिल्क और मैदे से बनाया जाता है, ऑलरेडी वो व्हाइट ही होगा। ऑलराइट। तो ये ज्यादा व्यूअर्स मतलब जो आपके गेस्ट आते हैं वो ये ज्यादा पसंद करते हैं रोस्टी या फिर ये? मैम अपना अपना टेस्ट होता है, वैसे पास्ता ज्यादा पसंद करते हैं। पास्ता ज्यादा पसंद करते हैं। और आखिरी जो डिश आप हमें दिखाने वाले हैं वो क्या है? ये आएगा सिजलर। एक्चुअली इसमें सिजलिंग हो नहीं रही है वैसे, लेकिन जब सिजलिंग होती है तो काफी अच्छा लुक देता है ये। ऑल राइट। तो देखने में तो ये बहुत टेम्पटिंग लग रहा है, तो आप इसे प्लीज डिस्क्राइब कर दें। ये चिकन पीसेस होते हैं। ओके। चिकन सिजलर में हम लोग एक ब्रेस्ट, एक लेग पीस देते हैं। ओके। ये पहले से हाफ डन होता है, इसको बॉईल किया जाता है। फिर रेड टोमेटो कनकेसी के साथ इसको पकाया जाएगा। उसके बाद इसमें थोड़ा सा मसाले वगैरह डाले जाएंगे। ये इसके साथ सिजलर में या प्रेजेंटेशन के तौर पे रखते हैं? प्रेजेंटेशन, हाँ, इसके साथ ही कॉम्बिनेशन होता है इसका। ऑलराइट। जैसे बॉइल्ड पोटैटो। बॉइल्ड पोटैटो। तो मैं इसे भी जरूर टेस्ट करना चाहूंगी। ओहो, ये तो बहुत ही बड़ा पीस है, आप इसे छोटा कर दें। हाँ हाँ श्योर। देखने में तो बहुत टेम्पटिंग लग रहा है, बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा है। एंड आई एम श्योर कि ये भी बहुत ज्यादा डिमांड नहीं होता होगा। यस, सिजलर। ओके, थैंक यू। तो अभी ये मैं खा के आपको बताने वाली हूँ कि कैसा है टेस्ट में। आई मस्ट टेल यू, इसमें मुझे खाने के बाद ऐसा लग रहा है कि मैं किसी सॉस में अगर ये बना है, और चिकन के पीसेस भी बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से बॉईल किए हुए हैं, वो बिल्कुल घुल जाते हैं। यस, ये हाफ डन होता है पहले से। अच्छा, यहाँ पहले से हाफ डन होता है ये। आपकी इन सारी डिशेस के साथ साथ एक चीज मैं आपको जरूर कॉम्प्लीमेंट करना चाहूंगी कि आप लोग इसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी लगते हैं। मतलब जिस तरीके से आपने रोस्टे को प्रेजेंटेट किया है, पास्ता को किया है, सिजलर को किया है, वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है। तो मैं आपसे बस थैंक यू सो मच, आपने हमें इतना टाइम दिया, आपने हमें इतनी सारी टेस्टी डिशेस बताई। तो कुछ ऐसी चीज जो आप अपने गेस्ट को बोलना चाहेंगे? गेस्ट को मैम यही बोलना चाहता हूँ कि ज्यादातर आते नहीं यहाँ पे, ज्यादा से ज्यादा है, ताकि हम लोग को भी अच्छा लगे। ऑल राइट। तो इनके समय पे नई डिशेस उन लोगों को प्रोवाइड करता रहूँ। ऑल राइट। तो जैसे कि उन्होंने कहा कि यहाँ पे बहुत सारे गेस्ट आए, बस यही उनकी डिमांड रहती है। और यहाँ खाना खाने के बाद तो मैं तो आपको पक्का सजेस्ट करने वाली हूँ कि अगर आपको नया टेस्ट चाहिए सिटी में, तो बिल्कुल आप आइए सेलर में, जो कि है महानगर में। भावना कपूर, thenewsborn.com, लखनऊ।